Hello students, कैसे हो आप सब लोग? I hope all of you doing well and fine. And I welcome you all in our next session of INMO flashback series, guys. In this series, as you guys must be knowing, we are solving previous year INMO questions, and in each video we are solving one question at a time, right? And we started with the year 2000, and so far we have completely done till 2015. So 16 years के papers complete हो चुके हैं, and currently we are going through INMO 2016, and उसके भी first 3 questions you can find the videos posted on the channel already. तो यू कैन फाइंड दो प्लेलिस्ट एज वेल, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप उसमें ऑर्डर से भी आप देख सकते हो, राइट? सो गाइज, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ INMO 2016. ओके, इट्स अ कॉम्बिनेटोरिक्स क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्वाइट इजी एक्चुअली. अगर आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया एंड यू कैन फॉर्म अ algorithm to understand it, it's quite easy. Okay, so before beginning, let me introduce myself. My name is Lohit Jindal. I've done my BTech from IIT Bombay. And I've been teaching mathematics for the past 9+ years for various competition exams like IIT JEE, Mathematics Olympiads and KVPY, etc. Right? Okay. So guys, question देखते हैं. Okay. And after seeing the question, I would request you guys to please try to solve the question by yourself first. Give this question and attempt by yourself. है ना? हो जाएगा तो that is well and good. अगर नहीं भी होता है, at least half an hour, 1 hour तो उसको try karo, right? Then watch the solution so that you are able to understand it in a much better way. Okay, all right, I hope guys sabne try kar liya hai. Now let us discuss this question and solve this. So guys, the question says, suppose 2016 points of the circumference of a circle are colored red and remaining points are colored blue. Guys देखो, as it is there are infinite points on a circle, right? ऐसे तो infinite points हैं, but yes, उसके ऊपर 2016 points are selected and colored red, right? Now the question is to prove, given any natural number n which is greater than or equal to 3, prove that there is a regular n-sided polygon, all of whose vertices are blue. So we have to prove that there will exist a regular n-sided polygon on that circle, right? All those vertices are lying on the circle. All of whose vertices are blue. वो वाले जो रेड कलर 2016 है उनमें से कोई भी उसके ऊपर नहीं है, राइट? दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव. सो गाइस, इसका मेथड बहुत इंटरेस्टिंग है सॉल्व सोचने का. आई विल शो यू. गाइस एक काम करते हैं, देयर आर 2016 पॉइंट्स, राइट? 2016 पॉइंट्स व्हिच आर रेड. हम क्या करेंगे? विल ट्राई टू फॉर्म 2017 n-sided polygons. Okay. Alright, for that I'll have to draw a diagram as well so that आपको अच्छे से समझ में आ जाए. Okay, then I'll show you. Okay, ये diagram के ऊपर भी आएंगे. What I'm trying to say here is 2016 points है ना, right? Since there are 2016 points, what we are trying to do here is we'll make n-sided polygon, but we will make 2017 n-sided polygon. ठीक है? We'll form 2017 n-sided polygons. Okay, with small rotations, with small rotations. Okay, 2017 n-sided polygons. Okay, with small rotations. Okay, such that no two polygons. Okay, हमने कैसे polygons बनाए? So that no two polygons share the same vertices. ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे बना के रखी हुई है गाइस मैंने डायग्राम. आप देख सकते हो, एक तो पॉलीगन है जो यहां से शुरू होता है, जिसका फर्स्ट वर्टेक्स यहां पे है ना? मैं नाम दे देता हूं A1, A2, A3. मैंने एग्जांपल के लिए ना 8-sided पॉलीगन बनाया हुआ है. ओके, सो जस्ट लाइक दिस यू कैन डू फॉर एनी n-sided पॉलीगन. A3 एंड सो ऑन ऐसे चल रहा है, देखो, है ना? देन द नेक्स्ट पॉलीगन इज B1. उसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया, राइट? आई हैव रोटेटेड दैट पॉलीगन बाय स्मॉल एंगल सो दैट A1 goes to B1, A2 goes to B2 एंड सो ऑन, है ना? A3 goes to B3 एंड सो ऑन, एंड देन C1, C2 उसको थोड़ा सा और रोटेट कर दिया, C2, C3, है ना? ये जो गाइस जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो तो कितना भी रख सकता हूं, वो तो मेरे ऊपर है, राइट? ऑल वी हैव टू डू इज जो A1 और A2 है, लाइक द सेकंड वर्टेक्स ऑफ द सेम पॉलीगन, उनके बीच में एक साइड अगर आप पिक करते हो n-sided पॉलीगन की, है ना? एंगल कितना सेपरेट होता है उस पे 2π/n. उस एंगल को आप कितने भी पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हो, वो तो आपकी मर्जी है ना, राइट? सो आई एम सेइंग
ब्रेक दैट डाउन इनटू 2017 पार्ट्स रादर, है ना। तो 2017 एन साइडेड पॉलीगन्स हो गए ऑफ ऑल द वर्टिसेस आर डिफरेंट, है ना। मतलब एक्चुअली में आपको टोटल डिफरेंट वर्टिसेस कितने मिल गए, टोटल डिफरेंट वर्टिसेस 2017 इनटू एन, क्योंकि एक एन साइडेड पॉलीगन के एन वर्टिसेस हैं और देयर आर 2017 डिफरेंट पॉलीगन्स, राइट। सेम पॉलीगन है, आपने उसको रोटेट किया धीरे धीरे, थोड़ा 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 एंगल घुमा के। सो कोई भी दो पॉलीगन्स का कोई भी एक भी वर्टेक्स कॉमन नहीं है, राइट। द कंप्लीट पॉलीगन इज रोटेटेड, सो नो पॉइंट नो वर्टेक्स इज कॉमन in any two out of the 2017 n-sided polygons, right? Now think about this guys. तो इसका मतलब अब आपके पास 2016 पॉइंट्स हैं, you have with yourself you have 2016 पॉइंट्स, रेड पॉइंट्स, है ना, बाकी सब तो ब्लू हैं। Now any red point can lie at a time, एक सिंगल पॉलीगन के ऊपर लाई कर सकता है, राइट। वन रेड पॉइंट can lie, one red point can lie on a single n-sided vertex, है ना, can lie on a single n-sided polygon, है ना। one red point can lie on a single n-sided polygon at a time, right। दो के ऊपर तो नहीं लाई कर सकता ना, because no two polygons have the same vertex। सो अगर एक रेड पॉइंट की बात करोगे, इट विल लाई ऑन अ सिंगल एन-साइडेड पॉलीगन एट अ टाइम, एट मैक्स, है ना। वन रेड पॉइंट एट मैक्स कैन लाई ऑन अ सिंगल एन-साइडेड पॉलीगन एट अ टाइम, ठीक है। अब आपके पास है 2016 पॉइंट्स, यू हैव so according to this you are having 2016 points, है ना। So basically with 2016 red points can lie on at most 2016 different n-sided polygons, राइट। ये बात बन गई ना। अब जो आपके पास 2016 पॉइंट्स हैं इस तरह से, ठीक है। नाउ इट इज एक्चुअली वेरी सिंपल पीएचपी। आपके पास 2016 रेड पॉइंट्स हैं, यू हैव 2016 रेड कलर्ड पॉइंट्स and you have 2017 polygons, and a red point can lie on a maximum of a one polygon, one of the polygons, right? So the 2016 red points can lie on a maximum of 2016 different n-sided polygons, considering every point is lying on a different polygon. That is at most, right? It can even happen that the 2016 red points are actually lying on less than 2016 polygons, right? So now it means, because there are 2016 red points and you have 2017 n-sided polygons, at least one of the n-sided polygon will have no red point, right? By PHP, pigeonhole principle, since you have 2016 red points, you can simply think of like this: there are 2017 holes in a wall and you have 2016 pigeons, right? So you will be able to say that at least one of the pigeonhole will be empty, because you have lesser number of pigeons and more number of holes, right? So by PHP, there will be at least one n-sided polygon, right, all of whose vertices are blue. And that is what we needed to prove. So quite an easy question using PHP. Okay, so I wanted to show you this diagram so you get to understand it better, proper आपको idea समझ में आ जाए that we are rotating like this. Okay, all right guys, that's it for the fourth question. In the next video we'll come back with the fifth question. Okay, so till then keep practicing and all the best guys. Take care. Bye bye. ISI aspirants, whereas for the JEE aspirants, मैं आपको guys एक अच्छा सा मतलब एक बताना चाहूंगा कि ये एक एग्जाम है जिसके बारे में जनरली काफी लोगों को पता भी नहीं होता, है ना। एंड अदर देन दैट जेईई एस्पायरेंट्स को फायदा क्या है, क्योंकि इसका सिलेबस कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है। आईएसआई का सिलेबस इज नॉट एट ऑल मच डिफरेंट फ्रॉम जेईई मैथ्स, रादर इस पेपर में तो सिर्फ मैथ्स ही आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री तो नहीं आएगी जेईई एस्पायरेंट्स के लिए, सिर्फ मैथ्स है, राइट। एंड हाउ इज इट यूजफुल, इट्स लाइक ब्रॉडनिंग योर होराइजंस, है ना। आप जेईई के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, आप साथ में अगर ये भी प्रिपेयर कर रहे हो,
लेट्स से इसके अंदर अच्छा स्कोर आ जाता है, यू कैन एक्चुअली फिगर आउट कि हाँ क्या पता आपको मैथ्स में इतना इंटरेस्ट है, यू माइट ऑप्ट फॉर दिस थिंग अगर आप इसमें सेलेक्ट हो रहे हो, राइट। Other than that, it will also help you in JEE aspect as well, because इसके अंदर हम इतने questions करेंगे, methods discuss करेंगे, all those methods and all will also be beneficial for you in JEE as well. वो methods तो same ही होंगे ना, maths तो maths है ना। So the syllabus is pretty much overlapping, and मैं अभी next slides के ऊपर आपको वही बताऊंगा कि syllabus किस तरह से overlap करता है ना, so that आपको एक idea मिल जाएगा। सो जेई एस्पायरेंट्स को ज्यादा टाइम भी वेस्टेज नहीं होगा, बिकॉज इट इज एक्चुअली रेलेवेंट फॉर देम इन जेई एज वेल, तो उनके लिए टाइम वेस्टेज नहीं साबित होगा ये कोर्स, राइट, इफ दे आर ऑप्टिंग फॉर इट। रादर वो आईएसआई के को भी एग्जाम को भी दे पाएंगे, बिकॉज उनको एक आइडिया लग जाएगा आप लोगों को कि आईएसआई में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना, और किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। एंड गिविंग द टेस्ट एंड ऑल विल हेल्प यू इन बोथ द एस्पेक्ट्स, जेई एज वेल एज आईएसआई एग्जाम एज वेल, इफ यू आर गोइंग टू गिव इट। ओके, इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 28th of November। तो गाइज मैं इसके टॉपिक वाइज वेटेज के ऊपर आ जाता हूँ, ऑल्दो वेटेज के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट, बिकॉज वेटेज के ऊपर अभय सर ने वो वीडियो के अंदर बात की हुई है, जो कोर्स का वीडियो है पहले सर ने जब अनाउंस किया था, बट आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट द टॉपिक्स। जो टॉपिक्स आए हुए हैं वो आपके जेई के साथ कैसे मैच करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू गाइज मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर जेई हु आर वाचिंग दिस वीडियो, राइट। आई एम गोइंग टू सर्कल द टॉपिक्स बेसिकली जो जेई में नहीं है, बिकॉज जेई के अंदर जो टॉपिक्स है वो तो सारे ही हैं, है ना, बिकॉज यू कैन सी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स इज देयर, कॉनिक सेक्शन इज देयर, स्ट्रेट लाइंस, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एरिया, है ना, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऑल दीज टॉपिक्स आर ऑलरेडी इन जेई सिलेबस। सेट्स एंड फंक्शंस होता है, पीएनसी होता है, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, एलसीडी, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी, ज्योमेट्री एंड पॉलिनोमियल्स। हाँ, यहाँ पे डिफरेंस आता है गाइस, द ओनली टू टॉपिक्स जो जनरली जेई के अंदर अब नहीं आते, एज सच डायरेक्टली जेई के अंदर नहीं आते, दैट इज ज्योमेट्री, दैट इज यूक्लिडियन ज्योमेट्री, नॉट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, कोऑर्डिनेट यहाँ पे कवर हो गया है, कोनिक्स एंड स्ट्रेट लाइंस एंड ऑल, सर्कल्स वगैरह। एंड देन द अदर थिंग इज नंबर थ्योरी, विच इज बेसिकली एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ, यू नो, आईएसआई का एक इंटीग्रल पार्ट है, 10% वेटेज आप देख सकते हो क्वेश्चंस में, एंड अदर मैथ्स ओलंपियाड के अंदर भी हम इसको बहुत रिगरसली टीच करते हैं। So guys, these two topics, number theory and geometry, actually these are very rigorously taught in mathematics Olympiad as well, है ना। तो ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं which constitute of about 17-18%, है ना, इन दोनों को ऐड करोगे तो मिसलेनियस में भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े मैथ्स ओलंपियाड के रिलेटेड होते हैं, तो अबाउट 17-18% का जो रेशो है वो ओलंपियाड मैथ्स का है, जो कि जेई के अंदर नहीं होता है। सो एज आई वाज सेइंग, जो आईएसआई एस्पायरेंट्स हैं उन्होंने तो ये टॉपिक्स कवर कर रखे होंगे, वेयरएज जेई एस्पायरेंट्स ने ये टॉपिक्स नहीं कवर कर रखे होते हैं। सो इफ यू आर एनरोलिंग इन आवर बैच, ये दोनों टॉपिक्स भी अच्छे से कवर किए जाएंगे, सो इट विल हेल्प यू अ लॉट इफ यू आर गोइंग टू गिव द आईएसआई एग्जाम, राइट। तो ये जो टॉपिक्स हैं, दीज आर आउट ऑफ द +1 +2 क्लास 11th एंड 12th क्लास सिलेबस, एंड दीज वी विल बी कवरिंग इन द सेशंस एज वेल, इनके क्वेश्चंस एंड ऑल, राइट। सो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रैक्टिकली 80-83% of the syllabus is overlapping with the JEE and ISI. There's an overlap, है ना, या फिर आप ऐसा कह सकते हो ISI का जो 80%, 82-83% of the syllabus है, that is same as JEE. So your majority part is covered for you, है ना, आपने कवर कर रखे हैं basis. The only difference is these two chapters, number theory and geometry, जो कि हम अपने सेशंस के अंदर आपको कवर भी करेंगे, right? So you'll not face that much difficulty if you're opting for this course, right? तो अगर आप किसी भी एक सेगमेंट में हो, लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एंड नॉट फॉर आईएसआई, तो आप कर सकते हो आईएसआई के लिए विद अ स्मॉल एफर्ट, एंड एनीवेज दिस नंबर थ्योरी एंड ज्योमेट्री दैट विल बी डूइंग विल एनीवेज इनडायरेक्टली हेल्प यू इन जेई एज वेल। ऐसा नहीं है कि उसका कोई काम नहीं है जेई के अंदर भी, वो आपको इनडायरेक्टली जेई के अंदर भी हेल्प करेंगे, राइट। ओके, दैट इज अबाउट द टॉपिक वाइज वेटेज, रादर कि क्या क्या सिलेबस ओवरलैप करता है, राइट। आफ्टर दिस गाइज, as I said कि क्लास वाइज क्या क्या वेटेज है, लाइक 18.8% ऑफ ओलंपियाड मैथ्स जो मैंने आपको अभी बताया, लाइक नंबर थ्योरी एंड ज्योमेट्री है मेजरली इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूट होता है, बाकी सब तो आपका 11th और 12th क्लास के सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। सो यू कैन सी कंबाइंड दे गेट अबाउट 81.2%, राइट। सो क्लास 12th का सिलेबस 36-37% है और 44.7% 11th क्लास का सिलेबस होता है, दैट इज आईएसआई सिलेबस, राइट। सो अगर आप 11th-12th कर चुके हो, दिस कोर्स इज बेसिकली मेंट फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स जो भी 12th में है प्रेजेंटली और उनका सिलेबस बेसिकली कंप्लीट हो गया होगा। सो बेसिकली दे हैव कवर्ड कंप्लीट 11th एंड 12th क्लास सिलेबस, उनके लिए है, या फिर इफ समबडी इज ड्रॉपिंग एन ईयर और सो 13th क्लास में है एक तरह से कोई अगर, तो उसके लिए एक कोर्स रेलिवेंट है। दिस कोर्स इज नॉट मेंट फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स एज ऑफ नाउ, राइट, बिकॉज उन्होंने 12th वाली चीजें नहीं की होंगी,
Although if somebody wants to learn it, like फिर वो है कि अगर कोई 11th क्लास का स्टूडेंट ISI प्रिपेयर कर रहा है तो इस कोर्स को ऑप्ट कर सकता है, बट द थिंग इज he might not understand the topics where the 12th class syllabus is being covered, so he'll have to manage by themselves, right? Okay, that is the weightage aspect. And now coming to the highlights of the course के अंदर क्या क्या होगा, as I told you guys, there will be like 28 November से start, or as I told you, and there will be 60 lectures in total. So every day, practically every day there will be class, and the timings would be 3 p.m. to 4:30 p.m. So in case you have some prior commitment on some days at 3 to 4:30, you can basically watch the replay for those days, है ना, वो भी कर सकते हो if you're opting for this course. So daily live lectures हैं, barring some holidays in between जो आती हैं, है ना, December end पे कुछ holidays होती है तो वो छोड़ दो, लेकिन but basically it is going to have you are going to have one lecture every day, ठीक है, तो ये होगा. And overall in the 60 lectures you'll be also giving 15 tests, total of 15 tests. Some might be part test or full test, everything, right? But total 15 tests होंगे आपके, which will give you ample practice for the upcoming ISI admission test, है ना. And for every lecture, for every of the 60 lectures, you'll be getting an assignment as well. Daily assignment, छोटा सा assignment होगा जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा time नहीं देना पड़ेगा. You don't have to carve out time from your JEE and all इसके लिए specially. जो you can say 1.5 hour का सेशन है और उसके साथ में half an hour, maybe 1 hour maximum for the assignment every day. So 2.5 hours के अंदर आपका ISI प्रिपेयर हो जाएगा साथ साथ में, and alongside that will help in anyways. JEE के अंदर तो सेम आता ही है तो वो हेल्प करेगा ही करेगा. So it's like both ways आपका यूज हो जाएगा. वो जो आप 2-2.5 घंटा रोज लगाओगे, it will be beneficial for you in both exams, ISI as well as JEE. JEE aspirants ये ना सोचे हम इसके ऊपर 2.5 घंटा लगा रहे हैं तो हमें फायदा नहीं है कोई, तो JEE में भी वो हेल्प करेगा ही करेगा, right? And as I already told you, the target grade is class 12th and 13th. 12th class students जो भी 12th class के end पे हैं, और 13th class students like you over there who are dropping a year or so, ठीक है. So that basically आपका theory पूरा covered होना चाहिए. You should be knowing the theory because we don't have the time in these 60 lectures to cover the theory portion extensively. So हम just skim through करेंगे, revise करा देंगे ऊपर से 5-10 मिनट में, और बाकी के टाइम के अंदर हम questions करेंगे उसके pertaining, right? So that will give you a very good practice for ISI exam, right? So guys, these are all the details about the course, ठीक है. So coming about the pricing of the course, that is about 5,555 rupees 0.55 after discount. Total price, initial price was 2,000. So after discount it is 5,555. And if you apply the code LJ Pro, right, you can click it. आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है आप क्लिक करोगे, it will be automatically applied. So 10% additional discount आपको मिल जाएगा, and you will get this course. You'll be able to buy the course at 5,000 rupees. ठीक है, तो guys 60 lectures and many more things are being provided to you in this course. So 5,000 a very nominal price accordingly, है ना, जितना हमने उसके ऊपर वर्क किया है इस कोर्स के लिए, रिसर्च करके पूरे प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस भी इसके अंदर यूज किए हुए हैं, है ना, so that you get the proper idea as well. And many different countries exams is also used. So mathematics wise आप बहुत अच्छे से कंडीशन हो जाओगे उस एग्जाम के लिए, right? So that is it from my end, guys. So looking forward to see you guys in the class, है ना. If you opt for this course, you'll be able to see the sessions, slides and all once you enroll in that, right? Okay guys, that's it from my end. We'll see you in the classes. Hope to see you there. Okay, bye bye guys. Thank you from my end. Bye bye.